Om Shanti, everyone. Good evening and good morning, Miraben in Bombay. It's early Good morning. morning. Good morning. So we welcome you from our heart, and it is so auspicious to have you with us. इतना हमारे लिए ये शुभ दिवस है, आप हमारे साथ हो और हम स्वागत कर रहे हैं आपका. स्वागतम स्वागतम स्वागतम. वेलकम वेलकम वेलकम. And everyone, those who have entered in the Zoom meeting, also very warm welcome to all of you. And those who are around from other countries, probably few I can see. So welcome to you also according to your time zone. And Miraben, accept these beautiful flowers. Okay. Yeah, you. right. So Accepted. Accepted. thank you so With much. love. So now, first of all, I know Miraben, you have a lot of pleasure to share with us, and we're all eager to hear from you. And soon we will start your sharing. Before that, we will show very short video and a small song, probably, right? Sureksha Ben will play song and video. And then Sita Ben will introduce you to everyone. So let us start. Om Shanti. Shall I start, Ranjan Ben? No, मीराबेन फर्स्ट अभी गीत बजाते और फिर Okay. सीता बहन आपका इंट्रोडक्शन भी देंगी सबको. Okay, fine. Okay. Okay, okay. Thank you. Okay. सबको ही प्यार बांटना जगदम्बा
Om Shanti. What a privilege and a joy to share a short profile of our distinguished speaker, Brahma Kumari, Sister Meera. Sister Meera has been with the Brahma Kumaris for about 59 years. She is the director of the Brahma Kumaris of the Santa Cruz and associated branches. She is the vice chairperson of shipping, aviation, and the tourism wing of Raj Yoga Education and Research Foundation. She is a member of the governing body of Raj Yoga Education and the Research Foundation. She's a member of the advisory committee of the MG Hospital, which is managed by the Brahma Kumaris in Mumbai. She's a trustee of the Radhibai Vatumul Trust, and she is a patron of the Women's Movement for Peace and Prosperity. She's such a traveler. She has visited many countries, Russia, the US, Canada, Europe, Africa, Australia, New Zealand, Singapore, Bangkok, Middle East. All these journeys to bring about worldwide spiritual awareness. Honored with many awards for services in various sectors, she has received the Dada Saheb Phalke Academy Sanman Patra for devoted services to the public sector. Sister Meera Ben conducted conferences, seminars, and campaigns at both a national and international level. To such a wonderful personality, we say welcome, and we look forward to your wonderful experiences and your sharing. Thank you, and Om. I turn the mic over to you. Thank you very much. Thank you, Sita. Thank you, Ranjan Ben. Thank you, sister. Okay. Mama, Jagdamba, Saraswati, ज्ञान वीणा वादिनी। मम्मा का हमारे जीवन में मिलना बहुत 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 महत्वपूर्ण रहा। मेरे जीवन का परिवर्तन का आधार रहा। 1963 में, आज से 59 वर्ष पहले, मार्च का मास था। मेरी एसएससी की एग्जाम चल रही थी और डॉक्टर निर्मला दीदी, उन्होंने हमें मैसेज दिया कि ब्रह्मा कुमारीज के माउंट आबू से मम्मा यहाँ पर पधारे हैं, तो आप सभी आइए वहां पर। 1 hour 45 minutes की दूरी पर था जहां मम्मा आए थे और जहां हम रहते थे। मैं और मेरी लौकिक मदर हम पहुंचे और जैसे ही मम्मा को फर्स्ट टाइम हमने देखा, दर्शन किया, मम्मा की दृष्टि ली, सचमुच वो हमारा मंगल मिलन बहुत न्यारा, बहुत प्यारा, बहुत अनुपम, बहुत अनोखा और बहुत 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 निराला रहा। मम्मा का क्लास सुना, फर्स्ट प्रवचन
इतनी सुंदर रीति से मम्मा ने स्पष्ट करके शिव बाबा की सारी महिमा सुनाई। वैसे जैन परिवार से होने के कारण आत्मा को तो मानते ही थे, परमात्मा को भी मानते ही थे, तो इतना सुंदर सही परिचय मिल गया तो मैं बहुत बहुत प्रभावित हो गई। मम्मा से मुझे महसूस हुआ कि ये हमारे अपने हैं, ये मेरे अपने हैं, इतना अपनापन लगा। श्वेत वस्त्रधारी, श्वेत धवल सफेद वस्त्रधारी, धवल व्यक्तित्व और धवल कर्तव्य कर्म मम्मा के, ये तीनों ने इतना प्रभावित कर दिया कि मुझे बहुत 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 एक अलौकिक अनुभव हुआ कि मम्मा इस जग से, इन जग के, इन दुनिया के लोगों से बहुत बहुत न्यारी है। इतना मैं महसूस किया 15-16 साल की उम्र में। मम्मा ज्ञान के गुह्य राजों को खोलने वाली एक विदुषी, मम्मा योग कला में संपूर्ण निपुण होशियार राजयोगिनी, सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली मम्मा कामधेनु रही। मम्मा इतना सुंदर रीति से, इतना सिंपल भाषा में और इतना सरल रीति से सुनाती थी कि हमें यही उस समय लगता था कि मैं आज की आज ब्रह्मा कुमारी समर्पित हो जाऊं और बन जाऊं। इतना प्रभाव रहा। क्लास में तो रोज जाते ही थे, बल 3.5 आवर्स आने जाने में लगता था, कभी 4 आवर्स भी हो जाता था, लेकिन कभी मैंने मिस नहीं किया। एक बार एक माता वहां पर आने वाली थी। मम्मा को किसी ने कहा कि वो माता श्री कृष्ण में बहुत मानती है। मम्मा ने उस दिन प्रवचन में वो रॉयल माता जो बैठी थी वहां पर, मम्मा ने उसको दृष्टि दिया और इतना सुंदर रीति से श्री कृष्ण की महिमा किया और फिर बाद में शिव परमपिता परमात्मा की महिमा की और दोनों का सारा डिफरेंस बताया। वो माता तो पूरी निश्चय बुद्धि ही हो गई। मम्मा जब समझाते थे तो कभी कोई चांस ही नहीं रहा कि किसी को शंका डाउट आ जाए। इतना मम्मा का समझाने का जो तरीका था वो इतना ब्यूटीफुल तरीका था। एक बार मम्मा ने मुझे बुलाया, मैं अंदर के कमरे में गई। दादियां और सभी खड़े थे वहां पर, निर्मल शांता दीदी जी वहां पर थे। तो उस समय मम्मा ने मुझे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। मैंने कहा मेरा नाम मीरा है। तो मम्मा ने कहा कि तुम किसकी मीरा हो। इमीडिएटली मम्मा ने कहा किसकी मीरा हो, सूट और टाई वाले की मीरा हो कि पीले पीतांबर वाले की तुम मीरा हो, तुम किसकी मीरा हो। वहां पर सब खड़े हुए थे तो मंद मंद सभी मुस्कुराते थे। मम्मा भी मुस्कुराती थी, मैंने भी मुस्कुराया और मम्मा को कहा कि पीले पीतांबर वाले की। मम्मा हर्षित हो गए। मम्मा को मैं गले मिली।
तो ऐसे कई बार मम्मा की दृष्टि ली, मम्मा के हाथ से टोली भी लिया, और जब भी दृष्टि लेती थी इतनी शक्तिवर्धक मम्मा की दृष्टि मुझे महसूस होती थी। और सामने सामने मम्मा जब पास होती थी, हम बैठे थे वहां पर, तो हमें ऐसा लगता था कि एक शीतलता का जो प्रवाह है, यहां से एक प्रवाह शीतलता का, ठंडक का यहां से पास हो रहा है। और इसीलिए कभी मिस नहीं किया, इतना दूर होते भी लगातार कंटिन्यूअस में जाती रही। कॉलेज मेरी उसके बाद में सामने थी जहां मम्मा रहते थे, तो रिसेस होती थी तो मुझे बहुत खिंचावट होती थी और मैं वहां पर मम्मा को मिलने के लिए चली जाती थी। हमारे लौकिक माताजी पिताजी ने भी बहुत सपोर्ट किया और बहुत अच्छी तरह से ब्रह्मा कुमारी जीवन में समर्पित हुए। मम्मा हमेशा कहते थे कि कभी भी हमें अमृत वेले का योग और मुरली हमें मिस करना ही नहीं है। मम्मा का नाम तो राधे ही था, मम्मा तो मुरली की मस्तानी थी। और मम्मा ऐसे महसूस होता था कि जैसे जो बोल रहे हैं वह एक सितार बज रही है। इतना मीठा मधुर मम्मा का आवाज, इतना कर्ण प्रिय, सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, चातक बन करके सुनते रहो, यही महसूस होता था। मम्मा कहते थे कि मुरली मिस करना मना ना फरमान वरदार बनना। और हम तो बाबा के फरमान वरदार बच्चे हैं, तो हम फरमान वरदार बच्चे जो बाबा कहते हैं वो करते हैं। बाबा की श्रेष्ठ मत पर, श्रीमत पर हम चलते हैं। मम्मा हमेशा क्लास में कहते थे कि हमें शिव बाबा की बहुत महिमा करते रहना है, हमें श्वासोश्वास बाबा को याद करना है, हमें इसमें कभी अलबेला नहीं बनना है। जो केयरलेस रहते हैं वो अपने जीवन में बहुत खो देते हैं। मम्मा हमेशा देखते थे और कल्याण की भावना हमेशा रखते थे कि ये बच्चा आगे बढ़े। रात को 2 बजे भी मम्मा चंद्रमा के साथ एकांतवासी होकर के, एकाग्र बुद्धि होकर के मम्मा योग लगाते थे। मम्मा सरस्वती ही महसूस होती थी। जो सरस्वती का हमने शास्त्रों में वर्णन सुना है, ज्ञान की देवी, ज्ञानेश्वरी, वही महसूस होती थी। मम्मा के चेहरे पर कभी भी फिक्र नहीं देखी, कभी भी महिमा मम्मा जो करती थी सबकी महिमा भी करती थी। जब कोई भी मम्मा के पास जाते थे और मम्मा को कुछ शिकायत भी सुनाते थे किसी की, लेकिन मम्मा हमेशा उनको समझाती थी कि सामने वाले व्यक्ति का ऐसा भाव नहीं है जो आप समझते हो, और आप भी उसके लिए कभी भी ऐसा भाव मत रखिए। हमें अपने जीवन का कल्याण करना है, हमें स्वयं अपने ऊपर ध्यान रखना है और हमें अपनी जीवन बनानी है।
तो मम्मा कहते थे कि स्वयं हम संपूर्ण बने, स्वयं हम संपन्न बने, औरों को सुधारने की जो जवाबदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमारे ऊपर नहीं है। हम औरों को चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे ऊपर जवाबदारी है। हमें स्वयं अपने आप को चेंज करना है और संपूर्ण हमें बनना है। और यही तो वो समय है जो हम कभी भी वेस्ट ना करें। मुरली भी बहुत ध्यान से सुनकर बाबा की और स्वयं अपने में समाती थी, उसका स्वरूप बनती थी और फिर स्पष्ट क्लियर करके सुनाती थी। इसलिए हमें बातें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाती थी। एकांतवासी बनना ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है हमारे जीवन में। लियो टॉलस्टॉय, जो रशिया के महान लेखक हो गए, उन्होंने बहुत सुंदर एक बात कही है अपनी बुक में कि एक व्यक्ति अपने फ्रेंड के पास जाता है, दोनों का आपस में कुछ हेल्दी डिस्कशन होता है और दोनों ही डिसाइड करते हैं कि हम एकांतवासी 1 मास के लिए रहेंगे, हम किसी को भी नहीं मिलेंगे, और जो जिसकी उसमें जीत प्राप्त होगी उसको दूसरा जो मित्र है वो उसको प्राइज देगा, इतने डॉलर्स देगा और बहुत ढेर सारे डॉलर्स उसको देगा, उसने कहा। तो वो व्यक्ति एक एकांत में बैठता है। पहले तो उसका 8 दिन उसको लगता है कि अरे मैंने ये क्या किया, ये तो बहुत मुश्किल है, और थोड़ा परेशान हो जाता है। परंतु फिर भी वो अपने मन को समझाता है कि इतने डॉलर्स में कमा लूंगा, मुझे कैसे भी करके बैठना है एकांत में, भले कोई भी मुझे ना मिले, मैं अकेला बैठा हूं। लेकिन 8 दिन के बाद उसकी परेशानी दूर हो गई और वो आगे बढ़ा। इतना सुंदर दिव्य उसको अनुभव होने लगे एकांत में, अपनी स्वयं के साथ मुलाकात हुई, स्वयं के साथ वो बातें करने लगा, स्वयं को इम्प्रूव करने का सोचने लगा, स्वयं को डेवलप करने का सोचने लगा, उन्नति करने का सोचने लगा। और जब लास्ट में सोचा अभी मैं एक काम करता हूं, मेरे जो मित्र है उसको बहुत ढेर सारा डॉलर्स मुझे देना पड़ेगा, और हो सकता है उसके पास इतना ना भी हो। और सचमुच ऐसे ही हुआ, उसका विचार सही था। वो 1 मास में उसके फ्रेंड को कुछ बिजनेस के अंदर लॉस हो गई और उसके पास पैसा नहीं था। वो बहुत परेशान था कि ये तो जीत जाएगा, मैं उसको कैसे दूंगा पैसा। और यहाँ पर ये मित्र जो है 1 दिन पहले वो बाहर निकल जाता है। फिर जब अपने मित्र को मिलता है तो कहता है कि मुझे अभी समझ में आ गया कि क्या महत्वपूर्ण ज्यादा है, धन या एकांत। एकांत बहुत 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 मुझे अनुभूति कराया, डिवाइन मुझे अनुभूति हुई। तो मम्मा को देखा, मम्मा हमेशा एकांत में सुबह उठ करके रहती थी। तो ये भी एक सीखने मिला कि हमें अमृत वेले का योग कभी भी मिस नहीं करना है। मम्मा भोजन करते समय बातें भी नहीं करते थे, इधर उधर भी नहीं देखते थे, और एक कना दाना भी जूठा नहीं छोड़ते थे। तो मम्मा से ये शिक्षा मिली और उस दिन से आज दिन
भोजन कभी भी हम जूठा नहीं छोड़ती, जितना चाहिए उतना ही लेते हैं। बाबा के यज्ञ का है, मम्मा ने कहा। एक बार गेहूं की बोरी थी और सभी साफ कर रहे थे, और पूरी बोरी जब हो गई, पूरी गनी बैग थी बड़ी, तो उसमें वापस साफ किए हुए जो गेहूं थे वो उसमें डालने लगे। तो जब उसमें गेहूं डालने लगे, वीट उसमें डालने लगे, तो नीचे भी गिर रहे थे दाने। मम्मा सारा देख रहे थे। तो जब देखा कि नीचे गिर गए हैं, कोई उठा नहीं रहा है, तो मम्मा ने जाकर के कहा कि ये जो है वो बाबा के यज्ञ का है, और बाबा के यज्ञ का एक भी चीज हमें वेस्ट नहीं करना है। ये एक एक दाने जो है, ये दाने गेहूं के नहीं है, लेकिन जो नीचे गिरे हुए दाने हैं वो एक एक गोल्ड कॉइन है, मोहर है। इतना सुंदर रीति से मम्मा ने समझाया, तो हमें भी जीवन के अंदर ये बात समझ में आई कि हमें कभी भी यज्ञ की कोई भी चीज कभी भी हमें वेस्ट नहीं करनी है। एक बार मम्मा कलकत्ता में गए हुए थे, वहां पर एक व्यापारी मिलने के लिए आया। व्यापारी बड़ा परेशान था, उसको बिजनेस में कुछ लॉस हुई थी। वो तो सुसाइड करने का सोच रहा था कि मेरा जीवन अभी कोई काम का नहीं। किसी ने कहा मम्मा के पास जाओ, तो वो आया। मम्मा से जब वो बैठा, मम्मा ने उसको शक्तिशाली दृष्टि दी और मम्मा ने उसको कहा कि आप जो है ये समझ लीजिए कि सुख दुख, मान अपमान, निंदा स्तुति वो किसी को भी नहीं छोड़ते। कोई भी मनुष्य उससे अछूत नहीं है, अर्थात उसको टच तो होता ही है इनसे। लेकिन हमें अपने जीवन के अंदर क्या करना है? ये जीवन बहुत वैल्यूएबल जीवन है। आप ऐसा करो कि ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करो, और आप योग की तपस्या करो, और आप बिजनेस करो साथ साथ। और बिजनेस आपको करना है निमित्त अपने आप को समझकर कि करन करावन हार परमपिता परमात्मा जो है वो करा रहा है और आप कर रहे हैं, और अच्छी तरह से संभाल करके आप करो। आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। और सचमुच ऐसे ही हुआ। उसका चेहरा में परिवर्तन आ गया और वो स्माइल देकर के फिर वो गया। इतना मम्मा ने परिवर्तन उसको कर दिया, उसका जीवन बचा दिया। ऐसे तो मम्मा के कई एग्जाम्पल हैं। कभी भी मम्मा को क्रोध नहीं आता था। एक बार मम्मा गए थे अमृतसर, और वहां पर एक बहुत क्रोध में एक भाई सेवा केंद्र पर जहां मम्मा थे वहां पर आकर के कहता है, दो चार लोगों को साथ में भी लाया था, और कहता है कि मुझे मम्मा से मिलना है, मुझे आपकी जो हेड है उसको यहाँ मिलना है, जो बहनों की हेड है। तो बहनें सोचने लगी कि अरे ये तो इतना क्रोध में है, इसको कैसे मम्मा से मिलाएं। और मम्मा तो उस मकान के अंदर बहुत ही ऊपर के फ्लोर पे थी, टॉप फ्लोर पे थी, तो सीढ़ी चढ़ के जाना था वहां पर। तो उसने राह नहीं देखी, किसी को पूछा भी नहीं, और ऐसे ही वो सीढ़ी चढ़ने लगा। तो जब वो स्टेयरकेस चढ़ने लगा, तो उस समय उसको जब ऊपर पहुंचने आया
तो उसको इतना शांति का, शीतलता का प्रवाह उसको इतना आया, इतने वेव्स उसको रिसीव हुए और इतना उससे वो प्रभावित हुआ, इन्फ्लुएंस हुआ, उसको उसके ऊपर बहुत इफेक्ट आ गई। और वो कहता है अपने मन को कि अरे यहां तो कोई शांति की देवी है, कोई शीतलता की देवी है यहाँ पर, और सीधा नीचे उतर जाता है, वो मिलने के लिए भी नहीं जाता है। और अपने साथियों जो साथ में आए थे उसको कहता है यहां से चलो चलो, यहाँ तो शांति की देवी है यहाँ पर, चलो चलो यहाँ से। उसका क्रोध पूरा मिट जाता है। तो एक बार जो मम्मा से मिलते थे तो उसकी अपने जीवन के अंदर बहुत बहुत इफेक्ट होती थी, और वो हमेशा के लिए वो अपने आप को वो इम्प्रूव कर देता था। मम्मा बहुत सुंदर रीति से ऐसे परिवर्तन कर लेती थी। एक बार एक क्रोधित व्यक्ति आया, मम्मा बैठे थे वहां पर, वो पहुंच गया। तो क्या हुआ कि मम्मा जो है वो अपने कमरे में एक ही चेयर थी और वहां बैठी थी। तो उसने वो भाई को कहा, मम्मा उठ गई, चारपाई के ऊपर बैठ गए और भाई को कहा आइए आइए यहाँ बैठिए, किस कारण आपका यहाँ आना हुआ? इतना मधुर भाषा में मम्मा ने उसको पूछा। वो तो एकदम पानी पानी हो गया, उसका क्रोध ही सारा गायब हो गया। वो बोल ही नहीं सका कि मैं कुछ शिकायत लेकर के आपके पास आया हूं, वो कह ही नहीं सका। और थोड़ी देर में वो चला गया, कहता है मैं बाद में फिर आऊंगा, और कुछ शिकायतें बोल नहीं सका। माना इतना मम्मा का उसके ऊपर प्रभाव पड़ा। मुंबई में मम्मा आए थे तो उस समय रात्रि को 12 बजे एक मिनिस्टर जो था, जो मिलने आया था, वो 12 बजे मिलकर के वो वापस गया। और मम्मा उसके बाद 1 बजे सोए, रेस्ट में गए। फिर भी सुबह 4 बजे अमृत वेले मम्मा उठ गए तो रमेश भाई जी के घर थे वो। तो रमेश भाई ने उनको पूछा कि मम्मा आप तो 12 बजे तक, माना 1 बजे तक रात को आप जाग रही थी, मिल रही थी मिनिस्टर को, और फिर भी आप अपने समय पर, रोज के रूटीन पर आप सुबह अमृत वेले उठ भी गए। तो मम्मा ने कहा, बहुत सुंदर रिस्पॉन्ड किया कि रात को मैं 12 बजे तक मिनिस्टर के लिए, उसके अपॉइंटमेंट के लिए मैं जाग सकती हूँ, तो क्या मेरे पीयू के साथ, शिव बाबा के साथ मेरी जो सुबह 4 बजे अमृत वेले अपॉइंटमेंट है, तो क्या मैं उसके लिए उठ नहीं सकती हूँ, जाग नहीं सकती हूँ? इतना मम्मा आनंदित होते थे, आनंद मग्न रहते थे। मम्मा एकाग्र बुद्धि भी बहुत बहुत थे। पूरा मम्मा कहते थे कि पूरा ध्यान हम जो करते हैं उसमें हमारा, मुरली सुनते हैं तो मुरली सुनने में ही होना चाहिए। और मुरली जो हम सुनते हैं, वैसे तो हम बहुत अच्छी तरह से सुनते हैं। क्लास में जब सेवा केंद्र पर आते हैं तो उस समय घर से आते हैं, अपना कार्य पूरा करके आते हैं, कारोबार पूरा करके आते हैं,
और उस समय मुरली सुनते समय अगर हमारा ध्यान इधर उधर यहाँ वहां मन और बुद्धि जाती है तो हम मिस करते हैं वैल्यूएबल बातें, ज्ञान रत्न मिस करते हैं। और हम खास समय निकाल करके आए, फिर भी हमें जो शक्ति मिलनी चाहिए, जो हमारे मन और बुद्धि को हमें रिफ्रेशमेंट देनी चाहिए, उस समय मिलनी चाहिए, वो रिफ्रेशमेंट तो हमें मिलेंगी नहीं, माना इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए हमें बहुत 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 इस बात पर अटेंशन देना है कि जैसे मम्मा बहुत एकाग्र बुद्धि होते थे, वैसे हमें भी अपने जीवन के अंदर बाबा की याद में और बाबा की मुरली ज्ञान रत्न सुनने में बहुत बहुत हमें एकाग्र होना है। एक बार स्वामी विवेकानंद, नाम तो नरेंद्र था, फ्रेंड के पास 1856 की बात है, मेरठ जो दिल्ली के पास है, मेरठ करके एक टाउन है, तो वहां पर गए और 1 वीक के लिए वहां पर थे। तो वहां अपने मित्र को कहते हैं कि आप लाइब्रेरी में मेंबर हो तो ऐसा करो, मैं यहाँ फ्री हूं तो रोज एक किताब पढ़ूंगा, तो आप फिलोसॉफिकल किताब रोज लेकर के आइए। उसका मित्र वो किताब लाता है, 5 दिन कंटिन्यूअस 24 आवर्स के अंदर एक बड़ी किताब पूरी कर देते हैं और वो वापस करते थे। नेक्स्ट डे दूसरी 5 किताब 5 दिन में पढ़ करके वापस किया। तो लाइब्रेरियन जो है बड़ा आश्चर्य खा गया। वो पूछता है कि आपका ये जो फ्रेंड है वो पढ़ लेता है एक दिन में? तो वो कहता है हाँ पढ़ लेता है। कहा मैं नहीं मानता हूं, मुझे लगता है उसको ये महसूस हुआ कि दिखावे के लिए ही लगता है कि पढ़ लेते हैं और वापस कर लेते हैं, कुछ इम्प्रेस करने के लिए। तो ये बात जब पता चलता है नरेंद्र को, तो वो जाते हैं लाइब्रेरियन के पास और उसको कहते हैं कि आप मुझे पूछ लो, मैंने ये पढ़ ली है किताब। वो किताब निकालते हैं और उसमें से कहते हैं कि ये पेज, उसमें मिडल में क्या है, तो वो तुरंत सुना देते हैं। एक बार में वो मानता नहीं है, ऐसे उसने 4 बार किया, 4 किताब लेके अलग अलग पेज पर, शुरू में क्या एंड में क्या, और वो बराबर स्वामी विवेकानंद, जो नरेंद्र नाम था, उसने बराबर सारे जवाब दे दिए। उस समय वो स्वामी विवेकानंद नहीं बने थे। तो उसकी जो मेमोरी थी वो फोटोग्राफिक मेमोरी थी, फोटोस्टेट कॉपी की तरह वो पूरा A to Z सुना देते थे, माना जरा भी फर्क नहीं, जरा भी फर्क नहीं। तो लाइब्रेरियन ने पूछा ये कैसे हुआ? तो वो कहते हैं कि मेरी दृष्टि और मेरा संकल्प, मेरा मन और मेरी बुद्धि, ये बिल्कुल इतना फोकस है कि मुझे याद रह जाता है। ऐसे ही बाबा के हम बच्चों का भी, हमारी दृष्टि, हमारे संकल्प और हमारी कर्म इंद्रियां, हमारे एक एक अंग, अगर हम ट्रेनिंग अपने आप को देते हैं तो बहुत अच्छी तरह से हम भी कंसंट्रेशन पावर जो है वो बहुत बढ़ा सकते थे। बाबा ने एक बार मम्मा को कहा कि आप लक्ष्मी बनने वाली है, और जब ऐसे कहा तो मम्मा तो बहुत खुश हो गए, बहुत आनंदित हो गए, आनंद मग्न हो गए। और उस समय से, उसी क्षण से, उसी वक्त से मम्मा ने पुरुषार्थ शुरू कर दिया। मम्मा की सीरत और मम्मा की सूरत, चेहरा और स्व का भाव कंप्लीट चेंज हो गया। और मम्मा का तो पुरुषार्थ नहीं कहेंगे, क्योंकि नेचुरल मम्मा ऐसे कर रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। तो लक्ष्य हमारा जीवन के अंदर
बहुत पक्का होना चाहिए कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, एम एंड ऑब्जेक्ट मेरे जीवन का क्या है। एक बार एक व्यक्ति बैठा था, ट्रेन में ट्रैवलिंग कर रहा था, टिकट चेकर ने आकर के कहा कि टिकट दिखाइए, तो वो चला जाता है बैग अपनी देखने के लिए। तो टिकट चेकर ने जो साइड पे पड़ी थी वहां चला जाता, वो देखता है बैग को, उसमें नहीं मिलती है। तो टिकट चेकर कहता है मैं सेकंड टाइम आऊंगा, आप ढूंढ के रखिए। फिर वो सेकंड टाइम आता है तो वो दूसरी बैग में ढूंढने लगता है। वो कहता है बहुत अच्छा टीसी था, कहता है मैं थर्ड टाइम आऊंगा, आप ढूंढ करके रख दीजिए अभी। तो थर्ड टाइम जब आता है तो भी वो ढूंढता ही रहता है, अपने पर्स में ढूंढता है। तो टिकट चेकर बहुत अच्छा था, उसने कहा कि मैंने मान लिया, रहने दीजिए, टिकट रहने दीजिए, मत ढूंढिए, मैंने मान लिया कि आपके पास तो टिकट जो है वो होगी ही। तो वो ट्रैवलर कहता है कि अरे, टिकट तो मैं इसलिए ढूंढ रहा हूं कि मुझे पता चले कि मुझे जाना कहाँ है। तो लाइफ के अंदर कभी ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि हमें पता ही नहीं हो कि मुझे जाना कहाँ है। मम्मा लक्ष्य की बहुत 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 पक्के थे। बाबा ने जब ऐसा कहा ना, तो मम्मा ने क्या किया कि स्वयं को गुणवान बनाना स्टार्ट कर दिया कि मुझे औरों के गुणों को ही देखना है, मुझे स्वयं गुणवान बनना है और मुझे औरों को गुणों का दान देना है। तो ये मम्मा करने लगे और इसीलिए मम्मा बहुत आगे बढ़ गए, यहां तक कि उनके लौकिक माता जी जो थे वो भी मम्मा को मम्मा कहते थे। मम्मा के लौकिक माता जी, इतना मम्मा आगे थे। एक बार एक कन्या मम्मा के पास आए, उसकी मदर के साथ थी। तो उस कन्या को मम्मा ने पूछा कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। तो उस कन्या ने कहा खाना पीना मौज करना। तो मम्मा हंसने लगे, स्माइल देने लगे और कहा कि देखो, 1 घंटा मम्मा ने उसको समझाया कि देखो हमारा यह जो जीवन है वो बहुत कीमती जीवन है। इस वैल्यूएबल जीवन को हमें आदर्श, एक रोल मॉडल बनाना है। मम्मा खुद तो रोल मॉडल थे, सबके आदर्श थे। और अपना जीवन जो है वो हमें बनानी है, हमें श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनना है। ये मम्मा ने उसको इतना अच्छी तरह से समझाया कि उस कन्या को इतनी शक्ति प्राप्त हो गई कि उसने अपना जीवन बना दिया और वो समर्पित भी हो गई। कन्याओं का ग्रुप जब मम्मा को मिलता था तो एक बार मम्मा ने उनको पूछा कि आप लोगों का क्या पुरुषार्थ चल रहा है, इसमें से बाहर का कौन खाता है। तो उसमें से 2-4 कन्याएं निकली ऐसी जो बाहर का खाती थी। फिर मम्मा ने उनको समझाया कि जब हम साधारण आत्मा अभी नहीं है, हम ऑल माइटी ऑथोरिटी की हम संतान है, हम अभी विशेष आत्मा है। तो हम सभी विशेष आत्माएं ऐसा नहीं कर सकते हैं।
विशेष आत्मा और साधारण आत्मा दोनों में बहुत फर्क है। तो उस दिन से वो सभी कन्याओं ने बाहर का भोजन छोड़ दिया। मम्मा हमेशा शिक्षा देती थी कि कभी भी जोर से आवाज से बात नहीं करनी है। मुझे ये इतना दिल को छू गई बात। हमेशा जिसका भी कार्य है उसको बुला सकते हैं कि आप यहाँ आइए, मुझे आपसे बात करनी है, लेकिन जोर से चिल्लाना नहीं है, जोर से आवाज नहीं देना है। तो इस बात का भी हम सभी को बहुत, इस मम्मा की शिक्षा का ध्यान रखना है कि हम रूहानियत में रहे और कभी भी जोर जोर से चिल्लाकर किसी को ना बुलाए। मम्मा तो नजदीक जाकर के कान में बात कर लेती थी कि दो व्यक्ति बात करते हैं तो तीसरे को सुनने की जब आवश्यकता नहीं है तो वो क्यों सुने। इतना मम्मा स्वयं के ऊपर अटेंशन रखती थी और हमें भी अटेंशन दिलाते थे। मम्मा तो सचमुच हृदयेश्वरी थी सभी की। मम्मा एक बार कहीं गए थे और बाबा ने 2 पत्र लिखे। एक में सारे ज्ञान के बिंदु थे, पॉइंट्स थी, और दूसरे में सारे कारोबार के थे। वहां पर मनोहर दादी भी थी मम्मा के साथ। तो मम्मा ने क्या किया कि पहले जिसमें ज्ञान की सारी नॉलेज की पॉइंट्स थी, दोनों पत्र में से वो पत्र पढ़ा। तो मनोहर दादी जी पूछते हैं मम्मा को कि आपने कारोबार वाला लेटर पहले नहीं पढ़ा और ये लेटर पढ़ा पहले ज्ञान की पॉइंट्स का। तो मम्मा ने कहा कि ये जो ज्ञान की पॉइंट्स है वो मेरे लिए भोजन है, मेरे जीवन का आधार है। ये मैं हमेशा पहले ज्ञान की पॉइंट्स पढ़ती हूँ और फिर मैं कारोबार का लेटर पढ़ती हूँ, और जो उसमें बाबा ने लिखा है वो सारा मैं कारोबार जो है वो सारा कारोबार मैं बाद में करती हूँ। तो इतना मम्मा को ज्ञान के लिए इतना सुंदर रीति से वो लगन थी। एक बार मम्मा को पूछा कि मम्मा हमारा मन जो है वो शांत नहीं रहता है, क्या करें हम पुरुषार्थ। तो मम्मा ने कहा कि मन जो है ना आपका वो एक छोटी बेबी है, एक बालक की तरह है मन। तो आप क्या करो, अपने मन को कहो कि थोड़े समय के लिए अभी तुम शांत बैठ जा, जब आवश्यकता होगी तो मैं आपको बुला लूंगी। ऐसे मम्मा ने सिखाया कि मन को एक छोटी बेबी समझ लो और उसको शांति से बिठा लो। एक बार मम्मा ने देखा कि कोई व्यक्ति किसी को शिक्षा दे रहा था, तो जिसको शिक्षा मिल रही थी कि ऐसा नहीं ऐसा करो, तो मम्मा जो है वो देख रही थी और वो दूसरी जो व्यक्ति थी वो शिक्षा ठीक से ले नहीं रही थी। ऐसा कैसे, ऐसा मैंने तो नहीं किया है, उसने ऐसा किया है, आदि आदि वो बोलने लगी थी। तो मम्मा ने उसको कहा, बाद में बुलाया और कहा कि देखो, जब भी कोई हमें करेक्शन देता है हमारे कार्य के अंदर, जब भी कोई हमें शिक्षाएं देता है तो उस समय हमें वो ले लेनी चाहिए और हमारे बुद्धि रूपी बॉक्स के अंदर वो शिक्षाएं रख देनी चाहिए, रिस्पेक्ट के साथ, लव के साथ। हमें ये रिस्पॉन्ड उसको नहीं करना है
कि मैंने तो ऐसा नहीं किया, उसने तो वैसा किया, आदि आदि जो भी सारी बातें हैं, ऐसे आर्ग्यूमेंट्स नहीं करनी है। लेकिन यही शिक्षा भल अभी कोई काम की ना भी हो, परंतु भविष्य में ये जो शिक्षाएं हैं वो आपको बहुत बहुत काम में आएंगी। तो इसीलिए आप ऐसा नहीं कहो कि मुझे अभी करेक्शन नहीं चाहिए। हमेशा अपने जीवन के अंदर करेक्शन हमें करना है। और जब बाबा कुछ कहते हैं तो बाबा का तो तुरंत हमें आज्ञा माननी है, हमें ऐसे आज्ञाकारी बनना है। एक बहन को एक बार बाबा ने कहा कि ये जो पलंग है, चारपाई है, वो इस तरह से घुमा दो, इस तरह से रखो। तो क्या हुआ कि वो बहन जो है उसने कुछ जवाब दिया बाबा को। तो मम्मा ने ये सारा सुना और देखा। फिर मम्मा ने उस बहन को बुलाया और कहा कि पहले तो महिमा किया, उसकी तारीफ किया, कहा कि तुम बहुत अच्छा जल्दी से निर्णय ले लेती हो। तो वो बहन बहुत सोचने लगी कि मम्मा मुझे ऐसा कहते हैं, क्या बात है। उसको कुछ समझ में नहीं आया। थोड़ी देर के बाद मम्मा ने दोबारा उसको कहा कि तुम बहुत होशियार हो, तुम बहुत जल्दी से डिसीजन ले लेती हो, वेरी फास्ट। तो उसने कहा मम्मा मुझे क्लियर करके बताइए, क्योंकि उसकी उम्र थी 17 साल की। तो कहा मुझे क्लियर करके बताइए, मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा। तो मम्मा ने उसको कहा कि जब बाबा हमें कहते हैं तो हमें बाबा की आज्ञा का संपूर्ण रीति से पालन करना है। हमें सामने कुछ कहना नहीं है, बल बाबा आप ही कहेंगे कि यहाँ नहीं यहाँ रखो। लेकिन हमें पहले बाबा को ये नहीं कहना है कि यहाँ नहीं यहाँ रखो। हो सकता है कि आगे चल करके तुमको अभिमान अहंकार आ जाए कि मैं बहुत होशियार हूं और मेरी जो बुद्धि है वो बहुत अच्छी बुद्धि है, मैं इंटेलिजेंट हूं। तो मैं इंटेलिजेंट हूं, बुद्धिशाली मैं बहुत हूं, इसका भी हमें कभी भी हमारे जीवन के अंदर अभिमान जो है वो कभी नहीं आना चाहिए। जीवन में नम्रता से हमें रहना है। मम्मा तो इतना सिंपल भोजन करते थे कि नष्टो मोहा स्मृति लब्धा था, कोई आसक्ति भोजन से नहीं थी। कभी तो मिर्च मसाला नमक के बिगर का भी बॉयल जो है वो भी भोजन ले लेते थे। और मम्मा जो है वो हमेशा कहते थे कि कोई भी बोझ अपने ऊपर नहीं रखो। जब कोई मनुष्य बहुत बोझ के साथ चलता है तो वो दौड़ नहीं सकता, वो फास्ट चल नहीं सकता है, उसको धीरे धीरे स्लोली चलना पड़ता। ऐसे ही हम अपने जीवन के अंदर हमें आगे बढ़ना है। तो जो हमारे सिर पर सारे इतने जन्मों का बोझ है वो बोझ हम खत्म कर दे, उसको हम भस्म कर दे और हमारा जीवन हम बहुत लाइट बना दे। ये बहुत आवश्यक है, अपना स्वयं का जीवन लाइट बनाना। मुझे याद आता है एक बार एक खेल जो है वो खेल रहे थे बाबा के साथ। मैंने भी साकार बाबा के साथ खेल खेला है। तो काफी साल 1963 से लेकर के काफी साल हर साल जाते रहे बॉम्बे से मधुबन में। तो एक बार एक बहन जो है वो जीत गई खेल में। तो बहुत वो खुश हो गई और कहा कि मैंने बाबा को जीत लिया, मैंने बाबा को जीत लिया। तो मम्मा ने उसको बुलाया और कहा कि ऐसे कहा जाता है कि मैंने खेल को जीता, मैंने बाबा को जीता, ऐसा नहीं कहा जाता।
तो कितना सुंदर रीति से मम्मा ने ये जो बात है वो उसको सिखाई। मना मम्मा का यह था कि कोई भी असंभव बात है ही नहीं। सारी बातें असंभव से मम्मा के लिए वो संभव बात हो जाती थी, इम्पॉसिबल से पॉसिबल हो जाता था, क्योंकि मम्मा में 3 बातें थी। 100% निश्चय बुद्धि, और परिश्रम अर्थात मेहनत बहुत, और तीसरा सुंदर मार्गदर्शन, बहुत कुशल, बहुत ही कुशल। तो ये तीनों बातों के कारण मम्मा बाबा की आज्ञा असंभव लगती थी, परंतु मम्मा उसको संभव पॉसिबल कर देती थी कि ये सारा बाबा ने कहा है तो हुआ ही पड़ा है, सफलता हुई पड़ी है, हमें सिर्फ हाथ पैर चलाने हैं, बाकी हमें कुछ नहीं करना है। वो भी हमारा भाग्य बने इसीलिए हमें हाथ पैर चलाने हैं। इतना धैर्यता से, गंभीरता से मम्मा सुनाते थे। दुनिया में तो हम देखते हैं, एक व्यक्ति ने गॉड को कहा, धैर्यता उसमें नहीं थी, तो गॉड को कहा, ओ गॉड गिव मी पेशेंस बट प्लीज हरी अप। उसको धैर्यता, पेशेंस वो चाहिए, लेकिन क्या कहता है, प्लीज हरी अप। तो दुनिया में तो ऐसी बातें होती हैं, लेकिन यहाँ यज्ञ में हमारी बात कंप्लीट अलग है। और मम्मा का मिलना मेरे जीवन के अंदर, मेरी लाइफ की हिस्ट्री में, मेरी लाइफ की हिस्ट्री में एक शानदार, एक बहुत ही भाग्यशाली शानदार एक अध्याय रहा, एक लेसन रहा। और वो गोल्डन राइटिंग से, सुवर्ण अक्षरों में वो लिखा गया। इतना मेरे पर मम्मा का कंप्लीट रीति से प्रभाव रहा। और मम्मा हमेशा बोलते थे, तो मुझे हमेशा यही लगता था, इतने क्लासेस मम्मा के किए तो लगता था कि सचमुच मम्मा इतना कर्णप्रिय, इतना जो मम्मा बोल रही है तो मैं सचमुच सुनते ही रहूं। अच्छा, ऐसा। अच्छा मीरा बहन, हमको भी ऐसा होता है कि हम आपको सुनते ही रहे, सुनते ही रहे। आपने थैंक यू। इतने थोड़ी मिनट्स में कितनी सारी बातें बताई, जो सभी को सीखने के लिए, हम सबको ध्यान में रखने के लिए, और कई बातें जो हमने नहीं सुनी थी ऐसी भी बताई। मैं तो एक बात और एक बात मैं कहना चाहती हूँ लास्ट में। ठीक है, ठीक है। लास्ट में कह सकती हूँ? हाँ, भले भले, हाँ, जरूर। हाँ। मम्मा ने जो बात कही मन और बुद्धि की, कि हमारा मन क्या होना चाहिए, बुद्धि क्या होनी चाहिए, तो उसमें ऐसा है कि बुद्धि से हम कैसे एकाग्र हो सकते हैं और बुद्धि हमारी कैसे हमें डिवाइन बनानी है। बाबा हमें कहते हैं कि हम बच्चे, क्योंकि बात तो सारी मन बुद्धि की है ना, तो बाबा कहते हैं कि हम बच्चे पारस बुद्धि बने, हम बच्चे डिवाइन बुद्धि बने, हम बच्चे प्रीत बुद्धि बने, हम बच्चे ईश्वरीय बुद्धि बने, हम बच्चे विवेक बुद्धि बने। क्या प्रॉपर है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, दैट इज विवेक बुद्धि हम बने। तो हम प्रीत बुद्धि बच्चे। एक बात ध्यान पे रखेंगे, एक टेलर के पास उसका बेटा जाता है, उसका शर्ट का बटन डालने के लिए टेलर पिताजी को बोलता है, वो ऑब्जर्व करता है फादर को। तो जब बटन उसने डाला तो सुई उसने अपनी कैप, जो टोपी होती है माथे पे पहले पहनते थे, वहां से निकाला, और बाद में जब उसका धागा बच गया तो कैंची अपने पांव के नीचे से निकाली
और सीजर से वो धागा कट किया, तो बच्चे ने पूछा टेलर को कि नीडल माथे पे और कैंची पांव के नीचे क्यों? तो पिताजी ने कहा कि नीडल जो है वो ज्वाइन करने वाली है, सभी को मिलाने वाली है, और कैंची है वो सबको अलग करने वाली है। तो इसलिए जीवन के अंदर बहुत ही सुंदर ये बात है कि हमें हमारी बुद्धि जो है वो नीडल की तरह रखनी है, लेकिन कैंची की तरह हमें वो नहीं रखनी है। और मम्मा की शिक्षा हमें सदा याद रखनी है। 2 बातें, हर घड़ी हमारी अंतिम घड़ी है और हुक्म ही हुक्म चला रहा है। ये 2 बातें हम जीवन में कभी ना भूले। ओम शांति। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी आपके और कुछ प्रैक्टिकल अनुभव है, कुछ सेवा के 1-2 ऐसे बता दो। अच्छा, आप जब ये लंदन में आई थी ना, तभी हमारी पहली हाँ मुलाकात, तो हाँ, वही मैं कभी, हाँ वो भी मैं कहना चाहती हूँ कि रंजन मैन, आपसे हमारी बहुत 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 पुरानी पहचान है। मैं 1990 में आई थी, तब आपको मिली थी। 95 में भी आपको दोबारा मिली, और आपके वेम्बली सेवा केंद्र का ओपनिंग था, और मैं मेन सेंटर से जहाँ रुकी थी, जानकी दादी जी ने जहाँ रुकाया था, तो वहां से बड़ी केक लेकर के मुझे याद है कार में, कि मैं अपने गोद में लेकर के आई थी, कि वो कार में इतनी बड़ी थी कि गिर नहीं जाए। और मुझे इतनी खुशी थी कि ये सेवा हो रही है, और मुझे वो वेम्बली का सेंटर नया, इतना इनर स्पेस का जो था, मुझे इतना अच्छा लगा कि इतना सारे लोगों की कितनी सुंदर रीति से, और कितना ये एलिगेंट है, और कितना सुंदर है बाबा की सेवा में, कितना ये स्पेशियस है। और बाबा जैसे कहते हैं ना कि ऐसे सेवा केंद्र होने चाहिए जो लोगों को दिखाई पड़े, और लोग आए वहां पर और लोगों की सेवा हो जाए। तो सचमुच मुझे वो बहुत अच्छा लगा था, और आपका स्वभाव भी मुझे उस समय इतना अच्छा लगा था कि आप बहुत ही सरल हो, और वाइब्रेशंस आपके बहुत अच्छे लगे थे, कि इतने सालों के बाद अभी हम कभी मिले भी नहीं हैं, और उसके बाद में हमने ना कोई हमारा कम्युनिकेशन हुआ है। लेकिन आप देखिए 1991 और 95 के बाद हम आज मिले हैं। आप मुझे आपके लौकिक ब्रदर सुरेंद्र भाई के घर में भी लेकर के गए थे, वो भी मुझे बराबर याद है, और सुरेंद्र भाई भी याद है, आप उनको भी मेरी याद देना। तो ये एक हमारा और आपके बीच में नाता रहा, जो इतने सालों के बाद हम वापस मिले। और ऐसा ही लगता है कि जी बहुत, ऐसा ही लगता है कभी ताजा ताजा मिले थे ना। हाँ, बहुत ऐसा ऐसा नहीं लगता लगता है। है बहुत पुराने, इतने साल हो गए, लेकिन हमारी ब्राह्मण जीवन में हम इतना फ्रेश रहते हैं, इतना हमारी मेमोरी फ्रेश रहती है, जैसे वही अनुभव अभी अभी कर रहे हैं। तो मुझे बहुत आपने, खुशी है आप हमारे जी पास आए। जी आपने बोलो। मुझे एक, जी जी, आपने मुझे एक सेवा का पूछा कि सेवा की एक बात सुनाओ। तो मैं जो है वो बीकॉम हुई, उसके बाद में मुझे एक संकल्प आया कि 2 घंटे, 1.5 आवर के बीच में कोई सेवा केंद्र नहीं है। एक साउथ मुंबई में है, और एक डॉक्टर निर्मला दीदी ने नॉर्थ मुंबई में खोला था, हमारे घर के बाजू में। तो विचार आया कि अभी जीवन तो डेडिकेट करना है, सेवा करनी है मुझे। तो ऐसा करते हैं कि एक सेवा केंद्र बीच में खोलते हैं, एयरपोर्ट के पास। तो ऐसे करके मैं और डॉक्टर निर्मला दीदी ने स्थान ढूंढा, और फिर सांता क्रूज का जो सेवा केंद्र है, आज से 46 वर्ष पहले 1974 की बात है। तो उस समय पिताजी ने भी बहुत सपोर्ट किया मुझे, और परमिशन दिया खोलने के लिए, और वो सेवा केंद्र खोलने के लिए फिर मैं निमित्त बनी, और सांता क्रूज सेवा केंद्र ऐसे शुरू हुआ। तो मुझे वो खुशी है कि बाबा ने जो है वो निमित्त बनाया, और सेवा शुरू हुई। नहीं तो 1.5 आवर दूर ऐसे जाना पड़ता था कितना एक अच्छा। स्थान से सेवा केंद्र पर जाने के लिए। तो ये एयरपोर्ट के पास हो गया, तो गेस्ट भी सारे उसी समय 75 से आने लगे, विदेशी सारे, और वहां पर रुकते थे। तो बहुत अच्छा हुआ, ये एक सेवा का मौका मिला। तो ये एक आपने, भाग्य मिला कि मैं अपने आप को पद्मा पदम भाग्यशाली समझती हूँ कि बाबा ने ये सेवा का गोल्डन चांस पुरुषोत्तम संगम युग में दिया। और कितना भाग्यवान हो आप, इतना मम्मा बाबा के साथ आपने टाइम बिताया है।
और प्रैक्टिकली उनके नजदीक रहकर आपने पालना भी ली है और ऐसे आपने रिटर्न भी दिया सेवा करके। अभी तक कितनी बड़ी सेवा करके रिटर्न भी दिया, तो फॉरेन वाले आपके पास आ गए, तो ये डबल सेवा हो गई। तो बॉम्बे जैसी सिटी में सेवा स्थान खोलना तो कितना बड़ा भाग्य है। तो ये तो सुनकर हमको बहुत खुशी हुई। बाकी अभी किसी को प्रश्न है मीरा बहन के लिए? किसी को कोई प्रश्न पूछना है? तो अभी जब कोरोना का जो लॉकडाउन पूरा होगा तो जरूर हमारे पास आप पधारिए जी। हमारे पीयूष, रिपीट करना, वहां पर एक हम सुनते रहेंगे। हाँ, वहां पर मेरी बहन का बेटा है पीयूष और शीला, तो वो इतना कहते हैं कि शिकागो आओ, शिकागो आओ, शिकागो आओ, हाँ हाँ इतना कहते हैं कि हाँ हाँ, हर वक्त हर साल कहते हैं अभी हम सांता क्रूज नहीं मिलेंगे, अभी हम वहां मिलेंगे। जरूर। हाँ जी, तो डबल हाँ डबल इनविटेशन है। हाँ लौकिक हाँ हाँ, हाँ, अनुभव जरूर। डबल। तो थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। और अभी सुबह सुबह, आपकी तो सुबह है, हमारी अभी रात पड़ने आई है, लेकिन सबको हाँ बहुत जी, खुशी है। जैसे नाइट क्लास भी हो गया, मम्मा की बातें भी इतनी सुनी, तो जैसे हमारी भट्ठी चल रही मम्मा की बातें सुनते सुनते सुबह शाम, तो कितना अच्छा रहा। अपने प्रैक्टिकल अनुभव मम्मा के साथ किया है, तो सुनकर सबको दिखाई बहुत नहीं पड़ रहा खुशी। है रंजन में। सो हाँ, सो जी रहा रंजन में, बोलिए। बस अभी सभी को मैं थैंक्स कहती हूँ जो भाई बहन अभी शाम को अटेंड हुए, और खास मीरा बहन आपको आपको जिसने मदद की होगी सेट करने में, वहाँ हमारे भी सारे ट्रांसलेटर्स स्पेनिश भाषा में और इंग्लिश भाषा में हुआ, तो ट्रांसलेटर को भी थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। सो मीरा बहन को बाय करते हुए है। आपको भी थैंक्स, और परिचय दिया उनको भी थैंक्स, और आपकी सारी टीम जो है हाँ, सबको बहुत अच्छी तरह सीता से थैंक्स। सीता बहन थैंक यू और टू। आप भी सांता क्रूज आइए जरूर, सभी आइए मिल करके। जरूर, हाँ हम सारा सारा अभी क्लास तो, आएंगे। हाँ सारा क्लास आइए, बहुत अच्छा। यहाँ 16 साल हमारे पास एक गार्डन था 5.5 एकड़ का, माना बहुत बिग गार्डन, तो उसमें सब देखने के लिए आते थे, सारे दादियां और सभी। 16 साल हमने मेंटेन किया, गवर्नमेंट ने दिया था जमीन, तो ओके 16 इयर्स वो संभाला हमने। हाँ, तो लोग पब्लिक बहुत आती थी वॉकिंग करने के लिए, तो 16 साल वो था। तो आप उसका सारे देखने के लिए आते हैं। उसमें बड़ी अम्ब्रेला बनाई है, 1000 लोग बैठ सकते हैं ऐसी। और बाबा का मेडिटेशन रूम बहुत सुंदर बनाया है, तो पब्लिक आती है और उसमें बैठती है। तो आपने कहा था ना सेवा का, वेरी तो गुड। ये हाँ भी एक हाँ, बहुत बड़ी सेवा, हाँ बहुत सेंटर के सुंदर बाजू सेवा। में ही है। हाँ हाँ, जी लोगों को अच्छा लगता है बाहर बैठकर योग करना, तो ये तो बहुत अच्छी अच्छी बात जी सुनाई है ना? जी हाँ जरूर हम आएंगे। गाम देवी सेंटर पर दादी गुलजार को मिलने गए थे, बाकी शुरू में जब लंदन से आते थे तभी बॉम्बे स्टॉप ओवर करते थे, अच्छा लेकिन इसके बाद तो ज्यादा बॉम्बे आने का नहीं रहता है। लेकिन योगिनी बहन भी ने बहुत कहा है, तो हम जरूर करेंगे ट्रिप। थैंक यू। हाँ, हम दोनों लौकिक सिस्टर है। हाँ वो, हाँ, योगिनी बहन विले पार्ले और मीरा बहन, दे आर जी, सिस्टर्स, लौकिक सांता सिस्टर। क्रूज ने ही, हाँ सांता क्रूज ने ही विले पार्ला खोला। अच्छा। हाँ हाँ, हाँ जी, सारे यहाँ से हम दोनों साथ में रहते थे, और फिर 1974 में एग्रीमेंट हुआ, तो और फिर वो विले पार्ला खुला तो वो वहां गई। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके फादर ने भी आपको मदद सहयोग दिया ना, जी, तो ये सपोर्ट किया बहुत। अच्छा। तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो बहुत भाग्यवान हो दोनों बहनें। बाबा के बाबा के दिल की डब्बी में भी बैठे हुए हीरे हो आप दोनों। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। आपको थैंक यू, आपने सेवा का मौका दिया, थैंक यू। It's our pleasure to have you with us. Thank you so much. Thank you. Good night. गुड नाइट।